Very good morning to you all. This is your English class. We are going to discuss lesson number 3 in this video. Name of the lesson is Always Speak the Truth. You have already done the bookwork of this lesson. Today we will do the remaining parts, word meanings, and we will answer the questions. First start with word meanings. Number 1, tended. Took care of. Tended means taking care of something properly or diligently. बड़े अच्छे तरीके से किसी चीज़ की देखभाल करना. That's called tended. Second, we have miserable. Miserable means very unhappy. It's a condition whenever someone feels so low, someone is very sad. So, the situation is called miserable. Very unhappy. When person is not happy and he or she is so unhappy. That's called miserable. Third, courage. Without fear. Courage means person who doesn't have any fear. Like किसी चीज़ से भी डर ना होना. Okay? So that's called courage. Fourth, jeered. Jeered means laughed. To make mockery of someone. To laugh at someone. किसी का मजाक उड़ाना. That's called jeered. Fifth, nod. Nod means move the head. सिर को हिलाना. But किस सिचुएशन में? When someone is agree with someone. किसी के साथ अगर आप अग्री हो, किसी के डिसीजन के साथ आप सहमत हो, है ना, तो आप सिग्नल दे रहे हो दैट यस आई एम ओके विद दिस. तो दैट्स कॉल्ड नॉड. अपना सिर हिला के किसी को किसी की हाँ में हाँ मिलाना. दैट्स कॉल्ड नॉड. ओके. सिक्स्थ, वर्दी मीन्स एबल. किसी चीज़ के जोग होना जिसे बोल दें. हु इज़ वर्दी ऑफ समथिंग, समवन टू डू समथिंग, है ना, तो उसको बोलते हैं एबल. एलिजिबल होना. Now we have questions. First we have, what was the emperor fond of? Emperor किस चीज़ को लाइक करता था? Answer is, the emperor was fond of gardening. उसका शौक था gardening. He was fond of gardening. Question number 2, why was the emperor finding a new emperor? जो emperor था वो क्यों एक नया एम्परर खोज रहा था? वाई ही वॉज फाइंडिंग? आंसर, द एम्परर वॉज फाइंडिंग अ न्यू एम्परर बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड. एम्परर एक नया जो नेक्स्ट इन लाइन था उसका नया जिसने एम्परर बनना था उसको फाइंड आउट कर रहा था. क्यों? बिकॉज वो अभी बूढ़ा हो रहा था. ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड इट वॉज अ कस्टम टू चूज नेक्स्ट एम्परर इन हिज किंगडम. और उसके किंगडम की, उसके राज्य की ये कस्टम रिचुअल थी कि जो भी एम्परर होता था उसने अपना नेक्स्ट इन लाइन जो किंग होता था उसको चूज करना होता था. लाइक ये उनके किंगडम का एक पार्ट था. लाइक एक रूल था, कस्टम थी, रिचुअल थी जो उसको करना ही पड़ना था. दैट इज वाई ही वॉज फाइंडिंग न्यू एम्परर. 2 रीजन्स थे. एक तो एम्परर ओल्ड हो रहा था, उसकी एज बढ़ रही थी, और दूसरा क्या था, ये उसके किंगडम की एक रीत थी जो उसको करनी ही पड़नी थी, है ना. सो आंसर इज, द एम्परर वाज फाइंडिंग अ न्यू एम्परर बिकॉज ही वाज ग्रोइंग ओल्ड. एम्परर नई किंग को ढूंढ रहा था एम्परर को बिकॉज ही वाज ग्रोइंग ओल्ड एंड इट वाज अ कस्टम टू चूज नेक्स्ट एम्परर इन हिज किंगडम. और उसके किंगडम की एक कस्टम भी थी कि जो नेक्स्ट जो एम्परर है उसको पहले ही फाइंड आउट कर लिया जाए, चूज कर लिया जाए. Okay, question number 3, what announcement did the emperor make? Emperor ने कौन सी announcement की? क्या उसकी declaration थी? Answer is, the emperor made the announcement that emperor ने announcement की that the child, वो बच्चा who will succeed to grow a plant from the seed, जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा प्लांट ग्रो करने के लिए सीड से, विच ही हैड गिवन टू एवरी चाइल्ड, जो उसने हर एक बच्चे को दिया है,
विल बी द नेक्स्ट एम्परर, वो नेक्स्ट एम्परर होएगा, नेक्स्ट किंग होएगा उसके किंगडम का. Once again, I'm repeating answer. The emperor made the announcement that emperor ने announcement की कि the child, वो बच्चा who will succeed to grow a plant, जो कि successful हो जाएगा plant grow करने के लिए, form the seed से which he had given to every child, जो उसने हर एक बच्चे को दिया है, will be the next emperor, वो next emperor होएगा. Next, we have question number 4. Why was Ching not able to grow a plant? Ching क्यों नहीं कोई plant grow कर पाया? Why he was failed? What was the reason behind that? Answer is the seed given by the king was cooked and dried. जो king ने seed दिया था वो cook करने के बाद dry किया हुआ था. That's why Ching was unable to grow any plant from such a seed. इसीलिए जो Ching था वो ऐसे सीड से कोई भी प्लांट ग्रो करने में असमर्थ था. दैट इज़ वाई ही वॉज फेल, बिकॉज एनीथिंग कैन नॉट बी ग्रोन आउट ऑफ द टाइप ऑफ सीड्स. ऐसे सीड्स से जो कुक करके ड्राई कर दिया हो कोई भी प्लांट ग्रो करने की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती. सो द सीड दैट वॉज गिवन टू हिम वॉज नॉट रॉ, वो रॉ नहीं था जो सीड उसे दिया गया था. दैट इज़ वाई ही वॉज फेल, दैट इज़ वाई ही वॉज अनेबल. Answer is the seed given by the king was cooked and dried. जो seed king ने दिया था वो cook और उसके बाद dry किया गया था. That's why Ching was unable to grow any plant from such a seed. इसीलिए जो Ching था ऐसे seed से plant grow नहीं कर पाया. Okay. Question number 5. Why did the emperor decide Ching to be his next emperor? Why? क्यों एम्परर ने ये डिसाइड किया चेंग को अपना नेक्स्ट एम्परर बनाने के लिए? आंसर इज चेंग हैड द करेज टू फेस एंड स्पीक द ट्रूथ. जो चेंग था उसमें जो करेज थी, उसमें ये साहस था. ही वॉज ब्रेव इनफ टू फेस एंड स्पीक द ट्रूथ. वो इतना साहसी था कि वो ट्रूथ को फेस कर सकता था और सच्चाई बोल भी सकता था. He tried his best, even when nothing grew out of pot. चाहे उसके पॉट में से कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने बेस्ट ट्राई कर रहा था. He was efforting, है ना? That's why the emperor chose Ching, the new emperor of his kingdom. इसीलिए emperor ने उसको अपने kingdom का next in line choose किया, next emperor choose किया. एक तो उसने सच बोला, दूसरा उसने अटैम्प्ट्स किए, इतने अटैम्प्ट्स किए, चाहे उसे दिख रहा था उसके पॉट में कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा, फिर भी वो ट्राई कर रहा था. ही वॉज ट्राइंग टू गेट समथिंग. उसे ये लग रहा था कि वो एंड तक ट्राई करता जाएगा. एंड ही हैज़ ट्राइड, उसने ट्राई भी किया. सो 2 रीजन्स थे. फर्स्ट वन, उसने सच बोला, एंड सेकेंड थिंग उसने क्या किया, लाइक गिव अप नहीं किया, उसने ट्राई किया, ट्राई करता ही रहा वो एंड तक. सो आंसर इज चेंग हैड द करेज टू फेस एंड स्पीक द ट्रूथ. चेंग में ये करेज थी कि वो सच को फेस कर सकता और बोल सकता. ही ट्राइड हिज बेस्ट इवन व्हेन नथिंग ग्रू आउट ऑफ पॉट. उसने अपने बेस्ट ट्राई किया उस सिचुएशन में जब उसे दिख रहा था कि कुछ भी उसके पॉट में से ग्रो नहीं हो रहा है. That's why the emperor chose Ching. इसीलिए emperor ने Ching को choose किया the new emperor of his kingdom. अपने emperor का new emperor, new king. Okay, that's all for today. Goodbye to you all. Have a good day.